نعمان علی باجوہ، سربراہ وفاقی سیکریٹریٹ ملازمین کور کمیٹی، چیف کوارڈینیٹر آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ لائنز، تمام صوبائی و وفاقی ملازمین کو السلام علیکم۔ امید خیریت سے ہوں گے اور انتظار میں ہوں گے کہ لیٹسٹ اپڈیٹس جو 10 فروری کا دھرنا تھا اس کو ہم نے مؤخر کیا، اس کے بعد کی کیا اپڈیٹس ہیں۔ سارے ساتھی اس میسیج کو شیئر بھی کر دیں، ہر ملازم تک پہنچنا چاہیے۔ اگر 9 تاریخ کو 7:30 بجے ہمیں لیٹر ملا اور تقریباً 8:30 9 بجے ہم نے اس کو پوسٹ پون کیا اور تقریباً 4 5 6 یا 7 گھنٹے کے اندر پورے پاکستان بھر سے آنے والے ملازمین جنہوں نے صبح دھرنے کے لیے آنا تھا، اگر وہ رک سکتے ہیں تو 7 دن ابھی بھی باقی ہیں۔ جو ایک ڈیڈ لائن تھی ہماری طرف سے اور پرائم منسٹر آف پاکستان نے جو کمیٹی کو ڈائریکشنز دی تھی اس حوالے سے، مطالبات کے حوالے سے میں ساتھیوں کو بتاتا چلوں، بڑا کلیئر ہے۔ ایک ایک مطالبہ اپنی جگہ پہ، اپنی نوعیت پہ اہمیت کا حامل ہے۔ ابھی تک کون سا مطالبہ پورا ہونا ہے، کون سا نہیں ہونا ہے، اس کے اوپر ڈسکشن نہیں ہوئی ہے۔ ویڈیوز ہمارے ساتھیوں نے شیئر بھی کی۔ ہم نے اپنے مطالبات سے گورنمنٹ آف پاکستان کو آگاہ بھی کیا، جس میں تنخواہوں میں تفریق کا ایشو تھا، لیو انکیشمنٹ پینشن اصلاحات کا ایشو تھا۔ لیو انکیشمنٹ پہ یہ بات بھی کی رانا ثناء اللہ صاحب نے کہ بھائی وہ تو ملازم کی چھٹی ہوتی ہے، اس کے پیسے ہیں تو چھٹی تو کرنی چاہیے۔ جس پہ ہمارا موقف تھا کہ مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا، اس کو چھٹی نہ ملی۔ جس نے سبق یاد کیا کہ جس اسکول میں ٹیچر ہی ایک ہے، انتظامیہ کے لوگ بیٹھے تھے، ان کی طرف اشارہ کر کے ہم نے بتایا کہ بھائی آپ ان کو تو چھٹی نہیں دیتے لا اینڈ آرڈر کی، اور یہ صورتحال ہے تو جو زیادہ کام کر رہا ہوتا ہے اسی کی چھٹی بچتی ہے۔ ایٹ دی اینڈ صرف 1 سال کے جو پیسے رہتے ہیں آپ نے اس کو کر دیا، اور وہ بھی صرف پنجاب کے حوالے سے، اس پنجاب کے حوالے سے جس کے اندر مریم نواز شریف صاحبہ ہم سے 2 دفعہ وعدہ کر چکی۔ پینشن اصلاحات کے حوالے سے ڈیفینیٹلی وفاق اور تمام صوبوں کے ساتھ ہے۔ جب وفاق اس کو انڈو کرے گا، تمام صوبوں کے اندر جو ہے یہ انڈو ہو جائے گا، کے پی کے، پنجاب، گلگت بلتستان اور تمام معاملات کے حوالے سے۔ ملازمین کی ریگولرائزیشن کے حوالے سے بات ہو، اس کے حوالے سے بھی کمیٹی بنانے کی بات ہوئی، بٹ ڈیفینیٹلی سب سے پہلے فائنینس کے حوالے سے جو معاملات تھے اس کو طے کرنا تھا۔ جو سب کمیٹی بنائی گئی اس کے اندر جو فائنینشیل امپیکٹ تھا میں نے آپ ساتھیوں کو بتا دیا۔ آج اس میں میٹنگ ہونی تھی، طارق فضل چودھری صاحب اس حوالے سے بزی تھے، فائنینس ریڈی تو تھی بٹ وہ میٹنگ آج انفارچونیٹلی نہیں ہو سکی۔ میں وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا، پابند کیا ہم نے، ہفتہ اتوار بیچ میں چھٹی ہے، منڈے کو 3 بجے یہ جو ہے میٹنگ ہوگی، بٹ ڈیفینیٹلی 17 تاریخ پہ چلا جائے گا۔ اور یہ نہ ہو کہ ہم ملازمین اس سستی کے اندر رہ جائیں کہ یہ معاملات چل رہے ہیں نیگوسیشنز کے، یہ سارے معاملات، اور وہیں پہ رہ جائیں۔ اگر 7 گھنٹے میں ہم رک بھی سکتے ہیں تو 7 دنوں کے اندر ہماری رفتار، ہماری تیاری بھرپور ہو جانی چاہیے، اور 10 فروری سے زیادہ بڑی تعداد کے اندر ہمیں مومنٹم بنا کے یہاں پہ پہنچنا۔ مطالبات جتنے بھی ہیں اتنے آسان نہیں ہیں۔ گورنمنٹ نے بڑا کلیئر کٹ اس کے اندر سٹانس لیا ہے کہ پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ ملازمین کو ریلیف دینا ہے۔ آپ کے لیڈرشپ ایک ایک مطالبہ جو ہے اس کے اوپر نظر ہے۔ ہاؤس رینٹ میڈیکل کنوینس الاؤنس ہائرنگ ہو، اس میں وفاقی ملازمین کی اپگریڈیشن ہو، ریگولرائزیشن ہو، سکولوں و اداروں کی نجکاری۔ میں بڑا واضح بتا رہا ہوں، نجکاری کے اندر جتنے الائنس میں ادارے ہمارے چل رہے ہیں اس میں ہمارا ریلوے، ہماری ڈسکوز، پاسکو، پوسٹ آفس، یوٹیلٹی سٹورز، یہ تمام ادارے ہیں، اور جو لیٹر ہم نے لکھا ہے اس کے اندر بڑا واضح ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو 100% ٹیکس ریبیٹ تھا اور جو اضافہ کیا ہے ٹیکس ریبیٹ، اس میسیج کو شیئر کریں، ہر ملازم تک یہ میسیج پہنچنا چاہیے۔ پورے پاکستان کی نظر جو ہے 10 فروری کے دھرنے کے حوالے سے تھی ہر ملازم کی، اور اپڈیٹس کے لیے تیار ہے کہ ہر ملازم تک یہ میسیج پہنچنا چاہیے کہ ہم نے سلو نہیں ہونا۔ یہ نہ ہو کہ ہم بھرپور رفتار جس کے ساتھ جا رہے تھے قائدین، ہم لائن پہ پہنچے اور خرگوش کی طرح سو جائیں۔ 10 تاریخ کو بھی بڑا کلیئر کٹ میسیج تھا کہ ہم نے 20 تاریخ کو ہر صورت میں یہاں پہ پہنچنا ہے۔ کمیٹی پے اینڈ پینشن کمیشن کے حوالے سے ہو یا دیگر ہوں، ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ جہاں پہ ملازمین سلو ہوتی ہیں، چیف منسٹر مریم نواز شریف صاحبہ نے یہ اعلان کیا تھا، مگر ہمارے کچھ ساتھیوں نے
जो फौरी तौर के ऊपर उसको किया, और प्रेशर हमें अपना किसी सूरत में रिलीज नहीं करना, ये ज़हन में रखें। और ये वही प्रेशर होना चाहिए कि हम कायदीन वहाँ पे बैठ के बोलें कि भाई मेरे पंजाब का इतना मुलाजिम आया बैठा है, मेरा KPK का इतना मुलाजिम आया बैठा है, पेंशन इस्लाहात जो है हम इससे पीछे नहीं हो सकते, तनख्वाहों में तफरीक का इशू है, हम इससे पीछे नहीं हो सकते, जो टैक्स रिबेट है हम इससे पीछे नहीं हो सकते हैं, जो डेली वेजेस कॉन्ट्रैक्ट एडहॉक कंटीजेंट TLA मुलाजमीन है हम इसकी रेगुलराइजेशन से पीछे नहीं हो सकते। एक एक चीज की वर्किंग के हवाले से FBR को जो आज हमने लेटर लिखा है मैं आपसे शेयर भी करूंगा, उनसे FBR से जो है मैंने ये डाटा मंगवाया कि आप हमें बताएं कि जो 100% टैक्स इजाफी लागू किया है उसका कितना फाइनेंशियल इम्पैक्ट है, कितनी सेविंग्स कर रहे हैं। उसके अंदर से भी फिर हमें बाइफर्केशन करके बताएं कि जो मुलाजमीन है सैलरीड क्लास है उसमें प्राइवेट सेक्टर का कितना हिस्सा है और गवर्नमेंट सेक्टर का कितना हिस्सा है। और तीसरी डिटेल उनसे मंगवाई है जो 25% टैक्स रिबेट लिया है उसका कितना है। बिल्कुल इसी तरह से जो पेंशन रिफॉर्म्स है उसका भी डाटा हमने उनसे मंगवाया फाइनेंस से कि आप हमें बताएं कि कितना इसके अंदर जो है आप सेविंग्स कर रहे हैं। ये सारा डाटा जब इस टेक्निकल कमेटी के आगे आएगा तो फिर निगोशिएशंस शुरू होंगी। ये 3 बंदों की जो कमेटी है, मैं फिर वाजे करता चलूं कि ये टेक्निकल जो है डाटा इसके ऊपर वर्किंग करके डाटा हमने एक्सट्रैक्ट करना है। उसके बाद पंजाब से 4, खैबर पख्तूनख्वा से 4, वफाक से 4 और गिलगित बल्तिस्तान से हम कायदीन बैठेंगे और ये निगोशिएशंस होनी है। कौन सा मुतालबा कब कहाँ किसके ऊपर हमने लचक दिखानी है, किसके ऊपर नहीं दिखानी है। पेंशन रिफॉर्म्स, लिव इनकैशमेंट, तनख्वाहों में तफरीक का खात्मा, टैक्स रिबेट, ये 3 ऐसे इशू हैं कि जिस पे किसी किस्म की लचक हम दिखाते हैं तो हमारे मुलाजिम का मुस्तकबिल जो है वो तारीक हो जाता है। अल्टरनेट वेज डेफिनेटली जब ये डाटा हमारे पास आएगा तो उसके अंदर से हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। मगर ये सारी चीजें हमारी मर्जी से अगर अभी ये चल रही है, डाटा प्रोवाइड किया जा रहा है तो वो आप लोगों का प्रेशर था 10 फरवरी का, नहीं तो हमें कौन एक्सेस देता था। और ये डिस्कशन, ये निगोशिएशंस भी साथी इस मैसेज को शेयर कर दें। जब हम निगोशिएशंस के अंदर जाएंगे तो ये सारी डिस्कशंस डाटा हम एक्सप्लोर करेंगे, फिर वहां पे हम चीजें रखेंगे कि भाई कि पूरे पाकिस्तान से आप अगर इतने % जो है टैक्स लगा देना, 1-2% हम भी उसके अंदर आ जाएं। सरकारी मुलाजिम की पेंशन को ही निचोड़ना है आपने कि अगर प्राइवेट सेक्टर बहुत बड़ा है और सरकारी मुलाजिम का बहुत छोटा सा कुशन है तो इसको छोड़ दें। आप हमारी तनख्वाहों में एक तरफ 25% इजाफा कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे 25 अरब का बेनिफिट दे रहे हैं और वहां से 100 अरब रुपया जो है पेंशन का हमारे से ले गए और 100 अरब रुपया टैक्स में ले गए, तो हमारे ही पैसे काट के आप हमें जो है 20 अरब रुपए का जो है पैकेज दे रहे हैं। ये वो तमाम चीजें हैं जो एक एक चीज के ऊपर नजर है और आपके साथी, आपके कायदीन बिल्कुल कंप्लीट वर्किंग के साथ हम उसके अंदर उतरेंगे। बट एक चीज बड़ी क्लियर है कि पीछे हमें बैकअप पे हो कि हमारे साथी सुस्त हो जाए। कुछ बहुत से लोग मायूसियां फैला रहे हैं। मेरा बड़ा वाज़ेह पैगाम है आप तमाम मुलाजमीन के लिए, जिस तरह 10 फरवरी की तैयारी थी उससे 2 गुना ज्यादा आपकी तैयारी होनी चाहिए। अभी तो आप पहुंचे नहीं थे, इतनी हाई लेवल की कमेटी बनी, उन्होंने दिया है, आप पहुंच जाते हैं तो फिर उसकी क्या जो है मामलात होंगे आप समझ सकते हैं। बहुत से लोगों को रहमान बाजवा की जात से तकलीफ हो सकती है और होनी भी चाहिए, क्योंकि रहमान बाजवा की वजह से बहुत से लोगों की गालबन दुकानें जो चल रही थी वो बंद हो सकती हैं, हो चुकी है। जो ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस, ये इत्तेफाक इत्तेहाद से जो हमने चीजें ली है माजी में कभी भी नहीं था। इस्लामाबाद के अंदर रेड जोन के अंदर 26 नवंबर के बाद किसी में इतनी जुर्रत नहीं थी कि इस्लामाबाद का रुख करता। वो रहमान बाजवा उसकी टीम ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस के साथी थे कि हम रेड जोन में भी आए और हमने गवर्नमेंट को बावर करवाया कि हम मुलाजमीन जो है हुकूमत के दुश्मन नहीं है, हम तो अपने इश्यूज लेके आए। और अल्लाह का शुक्र है कि हम मुज़ाकरात के अंदर भी हमने सबसे पहले अपना ये मौक़िफ़ इसकी तायीद करवाई और फिर हमने निगोशिएशन शुरू की कि हम प्रेशराइज या ब्लैकमेल करके नहीं कर रहे, हमारे मुलाजमीन के इश्यूज ऐसे।
आप तमाम मुलाजमीन के लिए ये मैसेज है कि जो मायूसी फैलाने की बातें कर रहे हैं सब कुछ, उनका बैकग्राउंड एक दफा आप चेक कर लें। यहाँ पे कुछ लोग तो आके ऐसे भी बातें करते रहे जो पिछले 5 साल तहरीक में हिस्सा भी नहीं थे, और ऐसी ऐसी गुफ्तगू यहाँ पे करके गए। मैं नाम नहीं लूंगा, मैं वीडियोस अगर आपसे शेयर की जाए, बट दिस इज नॉट द टाइम। ये टाइम है यूनिटी का, इत्तेफाक का, इत्तेहाद का, एक दफा फिर से तारीख रकम करने का कि भाई मुलाजमीन जो है, IMF की डायरेक्शंस जो है अगर हुकूमत मानती है तो मुलाजमीन उसको कतन कबूल नहीं करेंगे। एक एक मुतालबा इंपॉर्टेंट है, पंजाब के लीव इनकैशमेंट का हो, तमाम सूबों की पेंशन रिफॉर्म्स हो, वफाकी मुलाजमीन की अपग्रेडेशन हो, ग्रेड 1 से 16। एक और तकसीम चल रही है, यहाँ पे एक नई तकसीम चल रही है कि लिखते हैं अपने लेटरों में कि हम 30 साल से वफाकी सेक्रेटरीट की नुमाइंदगी कर रहे हैं कुछ लोग, और पिछले 10-20 सालों से जो तफरीक चल रही है मुलाजमीन को नहीं दे सके, मगर अभी लेटर खेले जा रहे हैं कि हमारा मुतालिबा नहीं है। बीच में कुछ लोग लेटर लिख रहे हैं एजुकेशन अलाउंस के हवाले से। भाई जब 150% हो जाएगा तो सेक्रेटेरिएट वालों को भी वो 150 मिलेगा, जो मर्जी नाम लिखो। जो एजुकेशन का हो जाएगा उसको जो मर्जी नाम लिखो। कुछ रेलवे के साथी अपने एक नए मुतालबे लेके जब 150 होगा जो मर्जी आप नाम लिखें। तो जो एक डिवीजन चल रही है कुछ खास लोगों की तरफ से, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मगर मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जो तफरीक तकसीम है आपने हर जगह पे शट अप कॉल देनी। आपके कायदीन बैठे हैं, ये इत्तेफाक इत्तेहाद था। और जिन साथियों के लिए मैं बड़ा वाज़ेह पैगाम देता चलूं कि जिन साथियों ने हमारी गैर मशरूत हमायत की है, वो मेरे लिए सबसे मोहतरम है, और सबसे ज्यादा वो लोग मोहतरम है जिन्होंने इस फैसले को आमीन भी किया। क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग तो गैर मशरूत हमायत करके दूसरी तरफ से नई कहानियां कि जो कल तक गालियां दे रहे थे आज हमायत की कि जी मिल गया तो कहेंगे जी कि हमने दिलाया, नहीं मिला तो सारे का सारा मलबा जो है गीगा की लीडरशिप के ऊपर। बुलशिट, कोई परवाह नहीं है। नाकामी वाला तो सवाल ही पैदा नहीं होता। गवर्नमेंट पॉजिटिव है, रहमान बाजवा अकेला भी हुआ, मुतालिबात नहीं हुए तो जेल के अंदर होगा। किसी जगह पे एक मैसेज नहीं दिया कि घरों में बैठ जाएं, सुकून से रहें, तसल्ली रखें। एक ही मैसेज है, 9 तारीख से अब तक कोई भी पोस्ट हो, मीटिंग का नोटिफिकेशन हो, उसके ऊपर भी लिखा हुआ है कि 20 तारीख को नहीं भूलना। तो तमाम साथी भरपूर तैयारी रखें, इस मैसेज को शेयर करें। पंजाब हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, गिलगित बल्तिस्तान हो, आजाद कश्मीर हो, जहां पे भी हो, 20 तारीख को आपने आना है। मुझे उम्मीद है कि उससे पहले मामलात हल होंगे, नहीं भी होंगे तो हम आके यहाँ पे जश्न मनाएंगे अपनी कामयाबी का इंशाल्लाह ताला। और मुलाजमीन दुश्मन कुव्वतों को ये पैगाम देंगे कि इत्तेफाक इत्तेहाद से क्या होता है। पहले भी चीजें हासिल की और आइंदा भी इंशाल्लाह ताला हासिल करेंगे। बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा तमाम साथी, मेरे भाई, मेरी बहनें। बड़ा वाज़ेह है, 20 तारीख 7 घंटे में रुक सकते हैं, तो 7 दिनों में पूरे सोशल मीडिया के ऊपर हमें नजर आना चाहिए कि हम सारे यहाँ पे आ रहे हैं। मुतालबे हल हो जाते हैं तो हम यौम तशक्कुर मनाएंगे इसी गवर्नमेंट के हक में। नहीं होते तो यही पार्लियामेंट हाउस होगा, हमारा धरना होगा, या बसूरत दीगर हम जेलों के अंदर होंगे इंशाल्लाह ताला। तमाम साथी भरपूर तैयारी रखें। जो KPK में कहते हो KPK की बात नहीं हो रही। कुछ मुनाफिकीन पंजाब में बैठे हैं जो उस वक्त कह रहे थे बिक के झुक गए, सौदा हो गया। ओहो, पंजाब की बात नहीं हो रही। ओहो, सेक्रेटेरिएट की बात नहीं हो रही। एजुकेशन की तमाम साथी भरपूर तैयारी रखें। ये इंशाल्लाह ताला 20 तारीख को बताएंगे किसकी बात हुई है, किसकी नहीं हुई, और किसके मुतालबे पूरे हुए हैं इंशाल्लाह ताला। डेफिनेटली रूल 17 प्राइम मिनिस्टर असिस्टेंट पैकेज के ऊपर भी बड़ी तफसीली बात हुई है। आल्दो के ये बताया गया कि कोर्ट का डिसीजन है, तो चेयरमैन राना सनाउल्लाह साहब को बड़ा मैंने वाज़ेह बताया है कि अगर आर्मी चीफ की एक्सटेंशन नहीं कर रहे थे, वो भी कोर्ट का डिसीजन था। तो अगर जॉइंट जो है इजलास बुला के उनकी एक्सटेंशन का जो है कानून बना दिया गया था, तो PM पैकेज का भी बनाया जाए, और इंशाल्लाह ताला हम करवाएंगे इसको। दुआओं में याद रखिए, इस मैसेज को शेयर करें, हर मुलाजिम तक पहुंचना चाहिए।
नोटिस मैं आपसे अभी इंशाल्लाह ताला शेयर कर देता हूँ। 3 तारीख को मीटिंग है। अगर ये 17 को होती है, कुछ फाइनेंशियल इम्पैक्ट हमारे सामने आएगा। 18 या 19 को जो है फिर फाइनल मीटिंग हमारे तमाम कायदीन की जो है उसके साथ होगी। ये तो सिर्फ 3, एक पंजाब से, एक वफाक से और एक खैबर पख्तूनख्वा से साथी लेके हम इस पे काम कर रहे थे। इसके फ़ौरन बाद जो है मैं अपने मैसेज में जो है वो जो कमेटी है वो आपसे शेयर भी कर दूंगा, जिसके अंदर तमाम डाटा लिखा है कि SBR से भी हमने कहा है कि टैक्स जो आपने लगाया है मुलाजमीन के ऊपर वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करें। बिल्कुल एक एक चीज़ के ऊपर अपना मोमेंटम बनाया हुआ है। एक का दिन ऊपर भी हो जाता है तो 20 तारीख को बैठ के इंशाल्लाह ताला कमेटी खेल लेंगे। बट ये कमेटियां ही हैं, जो भी मामलात हल हुए मुज़ाकरात की टेबल से ही हल हुए हैं। बट डेफिनेटली पीछे जब आपका प्रेशर होगा तो हम ज़्यादा बेहतर तरीके से जोश और जज्बे के साथ और खुद एतमादी के साथ मुज़ाकरात में बैठ सकेंगे। थैंक यू सो मच।